Now we are starting with the program. I would request all of you to rise at your place as we are having GTU song. GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय जन कल्याण का अडिग हिमालय गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय इनोवेशन की मशाल उठाए ज्ञान को चारों ओर फैलाए विश्वकर्मा की कृपा को पाकर विश्व फलक पर शान बढ़ाए नवीनता की खुशबू से जो भारत का कण कण महकाए ज्ञान पिपासु शिष्य वृंद की तपो साधना सफल बनाए GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय अनुभवी शिक्षक कौशल बढ़ाएं परहित का ही पाठ पढ़ाएं अनुसंधान और ज्ञान का संगम भावी पीढ़ी उज्जवल बनाए आत्मनिर्भर युवा बने और शिक्षित विकसित राष्ट्र कहाए गौरव माता पिता का बढ़ाए हर मन में विश्वास जगाए GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय विकास का यही क्रम दोहराए GTU को सर्वश्रेष्ठ बनाए हासिल करके उच्च सफलता शिक्षा जगत में क्रांति लाए सिद्धपुर सोमनाथ सूरत से कच्छ तलक फैला ज्ञानालय अपार संजोए संभावना गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय जन कल्याण का अडिग हिमालय गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय Thank you, everyone. Now we would have messages from our BOG members. Can we have the videos, please? The Foundation Day is a great day where administration has to look back to the activities performed in the past and look forward and plan incomparable growth and progress with excellence at par. GTU is now completing 13 years and stepping further. It moves in a teenage. As you know, in teenage, you have maximum strength, courage,
imagination, and will to do differently. I am sure with all the bright and intelligent faculties and students, GTU will do wonders in coming years. Wish you all the best. Congratulate all of you for this occasion, 13th Foundation Day of GTU. Whenever we hear the word university, we always recall the name Takshashila and Nalanda, the ancient Georgia's historical universities of India. Foundation Day is a great day for any institution. This is the opportunity for the administration to look back to the activities performed in the past and plan to look forward an incomparable growth and progress with excellence at par. With all its faculties, I expect that GTU will do wonders in the coming years. I am sure that the students of this GTU will overwhelm the world and will shine the name of GTU. The foundation day of any institution is a great day, where the administration has to look back to the activities performed in the past and plan and look forward an incomparable growth and progress with excellence at par. GTU is now 13 and stepping further, it means it is still teenage. This age is such where you have maximum strength, courage, imagination, tenacity, and enthusiasm to do something and shine out differently. With all these faculties, I expect that GTU will do wonders in the coming years. My best wishes to GTU. Thank you. I've been asked to talk on my experience with Gujarat Technological University. Let me say that it has been a very satisfactory experience. I am on the incubators of several other academic institutes, including the CIIE at IIM. And I'm very happy to note at the very aggressive approach taken by the leadership of GTU to drive innovation. Not only they have held workshops from time to time, a lot of projects to stimulate innovation are held from time to time. There is a dense bank of 250 mentors who are always available to guide the startups and help them to bring their products to reality. Therefore, it is not surprising that 50 startups have been converted to enterprises. And this itself means a lot to a fast growing economy of India, because ultimately innovation is a key driver of economic growth, and it gives an edge over manufacture of Me Too products. As I said, it's my privilege to be on the board of governors of GTU, and I wish GTU all the very best to produce more and more talent in the years ahead. Thank you. Dear students, researchers and faculty members, greetings from Gujarat Technological University. It started its journey in 2008 in very short span of 12 years is moving towards becoming a benchmark university by working transparently for students. It has well recognized nationally and internationally and day by day radially expanding its horizons under the dynamic leadership of Honorable Vice Chancellor Professor N.R. Seth sir. GTU has started its own IPR journey in 2011. Till now, it has organized more than 450 programs, including FTPs, on IPR. It is also running
specialized IPR PG diploma courses, and actively supporting innovators for complete patent, trademark, design, and copywriting under the SSIP. It's a matter of great pleasure that GTU is going to celebrate its 13th Foundation Day by organizing a national webinar on नए भारत के लिए बौद्धिक संपदा intellectual property for New India in partnership with various state and central government agencies on 16th May Saturday 10 a.m. I humbly appeal you all to register yourself and motivate others to participate in this valuable national webinar. I wish every success to everyone. On 13th Foundation Day of GTU, I as a BOG member feel proud of our university, its leader, faculty, students and staff for making GTU a leading institution. GTU is a brainchild of our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji. GTU has path-breaking past of innovation and has provided milestone for value-added quality education. Let's now gear up for providing skill development program to make India Atmanirbhar. Create startup, innovation, entrepreneurship module for Make in India program. To develop new skill module for MSME and to develop local brand to make it global. My special thanks to our dynamic Chief Minister Vijay Rupani ji, who under the able leadership of Sri Narendra Modi ji dreams GTU to be world-class university. We are committed to this dream. My good wishes to Vice Chancellor and team GTU. Namaskar, Vande Mataram. Hello friends, myself Dr. Nehal Shukla, BOG member of GTU. I invite you all to join the 13th Foundation Day, means the Teenager Entry Day of GTU. Our respected Prime Minister and former Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Bhai Modi, has founded GTU with some dreams and some high thoughts. In nowadays, GTU become a brand. GTU is now not only university, but GTU has become a brand, and we all the stakeholders are proud to be a stakeholders. And I personally thankful to Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Vijay Bhai Rupani, who has shown us the dream to be the top international university. We will really work hard to fulfill the dream of Shri Vijay Bhai Rupani. And again, I insist you all to join this 13th Foundation Day of GTU. Thank you. We thank all the BOG members for their valuable messages on today's occasion. Respected invited dignitaries and guests, BOG members, Honorable Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, Principals, faculties, students, GTU staff, researchers, startups and industries from across India. A very healthy and warm good morning. I, Dr. Shweta Bambuwala, on behalf of GTU, welcome one and all for celebration of GTU's 13th Foundation Day with insightful discussion on Naye Bharat ke liye Bauddhik Sampada, intellectual property for New India. On 16th May 2007, the first step towards best technical education in state was pioneered with establishment of Gujarat Technological University. Since inception, GTU has always contributed towards providing best technical education through its various innovative and technology-oriented initiatives,
starting from exam, syllabus, designing, faculty and student development, startup innovation, entrepreneurship, and many more. During this pandemic COVID-19 situation also, GTU has ensured best connection with its stakeholders through various knowledge-driven webinar series, video competitions, and many cultural and sports webinars. Today's occasion of GTU's 13th Foundation Day celebration is graced by august presence of visionary, industrious, and benevolent Chief Minister of Gujarat, Shri Vijayabhai Rupani as chief guest, always supportive and high-spirited Education Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Singh Chudasama sir, and Minister of State for Education Department, Srimati Vibhavariben Dave. Sir, ma'am, we warmly welcome you. We also have with us today's expert session. We also have today with us today's expert, Dr. Mohit Gambhir, who will be sharing his expertise on today's theme. We also welcome you, sir. To give more insights about today's occasion, I would request now Dr. K.N. Kher, sir, Registrar of GTU, to share a few words with us. Sir, please. Congratulations to all stakeholders on the occasion of the GTU Foundation Day. Happy birthday to all for GTU Foundation Day. 16 May is a remarkable day in the history of the Gujarat Technological University family. GTU family is about 4 lakh Indian students, 700 foreign students, and 20,000 faculty of various 428 affiliated institutes. India is known to celebrate various festivals with family members, and as an administrative head of GTU family, I invite all of you in the occasion of the 13th Foundation Day of the GTU. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi laid down the foundation stone of GTU in 2007 with a visionary vision to provide the world-class education to all stakeholders, and today I am delighted to say that GTU has got the first rank in Gujarat and 28th rank in list of top 200 university of the country. The credit of success goes to all stakeholders of the GTU, and I hope that GTU will set new records in coming years. GTU is relatively young university in terms of number of years. It has created landmark victories in the field of promoting innovation, supporting startups, boosting internalizations efforts, and giving secured environment to youth by cybersecurity awareness program. GTU has received more than 40 awards in the short duration of 13 years. Very proudly, I sharing with all of you that recently GTU has received Most Promising University of India 2020 award and Most Promising Vice Chancellor of the Year award, and we fortunate enough to get such visionary leadership of our Honorable Vice Chancellor Naveen Seth sir. On the occasion of the Foundation Day of the GTU, I welcome all stakeholders, all guests, Honorable Chief Minister as a chief guest, Honorable Education Minister Shri Bhupendra Singh Chudasama sir as a guest of honor, MOS Shri Vibhavariben Dave as a guest of honor, and all the BOG member, academic council member, finance committee members, all the principal of affiliated institute, and all my dear students who are joining with us. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable words. I would request now Honorable Vice Chancellor, sir, Dr. Naveen Seth, sir, to address the gathering. नमस्कार। आप सबको गुजरात टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय की ओर से मेरा प्रणाम। गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय के इस 13वां स्थापना दिन
के सेलिब्रेशन में उपस्थित हमारे शिक्षा मंत्री श्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा जी, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट आदरणीय विभावरी बेन दवे, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मोहन जी, डायरेक्टर इनोवेशन सेल MHRD, और इस कार्यक्रम के उपस्थित ऑनलाइन उपस्थित रहे सभी बंधु भगिनी, छात्र छात्राएं, फैकल्टीज, BOG मेंबर्स, डीन्स एक्सेट्रा। मैं गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से सबका स्वागत करता हूं। इस एवरी ईयर ये जो सेलिब्रेशन होता है तो बहुत भव्यता से सेलिब्रेशन हम करते हैं, लेकिन इस बार इस कोविड-19 की परिस्थिति में ऑनलाइन सेलिब्रेशन करने का तय किया गया। हमारी पूरी GTU टीम उस सेलिब्रेशन की सफलता के लिए बहुत इस कोविड-19 स्थिति में भी अच्छा प्रयत्न किया, और आज इस कार्यक्रम में बहुत गर्व की और आनंद की बात है कि जो मुझे डेटा मिला है, इसी प्रकार पूरे भारत के सभी राज्यों से बंधु भगिनी इसमें जुड़े हैं। इतना ही नहीं, भारत के बाहर से भी कई देशों से भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए उनकी स्थापना का दिन बहुत महत्व का होता है। यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये 12 साल की यात्रा, ये ऐसी बड़ी लंबी यात्रा तो नहीं बोली जाती। जब मैं यूरोप गया था, जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी में गया था, इटाली की यूनिवर्सिटी में गया था, तो सुनता था कि हमारी यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है, और यहाँ से नोबेल लिटरेट ये मैडम क्यूरी इधर से हुए थे, ऐसा सब कुछ सुना था। तो कंपैरिजन में हम बहुत छोटे हैं, लेकिन शुरू के जो वर्ष होते हैं यूनिवर्सिटी के इतिहास में, वो बहुत महत्व के होते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उस समय के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो जब कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है तो शासन प्रशासन की एक अपेक्षा रहती है, प्रदेश की भी एक अपेक्षा होती है, देश की भी अपेक्षा होती है, और सबकी अपेक्षा है कि गुजरात में एक अच्छी यूनिवर्सिटी बने, जहां से अच्छे इंजीनियर्स बाहर निकले, जो इस देश के विकास में, इस प्रदेश के विकास में काम करे और संपूर्ण मानव जाति के विकास में काम करे। ऐसी एक भव्य अपेक्षा के साथ यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। 12 साल की हमारी जर्नी में यूनिवर्सिटी ने जो कुछ किया है और अपना एक नाम बनाया है। जो नाम बनाया, अभी हमारे रजिस्ट्रार श्री ने बताया कि हमने अवार्ड लिया, इतना किया, तो उसमें जो कुछ सफलता हुई है उसमें सभी का योगदान है। हमारे पूर्व जो वाइस चांसलर रहे, इंचार्ज वाइस चांसलर रहे, आज मैं उनको याद करता हूं, पंचाल सर, मनीष भाई भारद्वाज, डॉक्टर MN पटेल, डॉक्टर राजूल बेन गज्जर, और 2 टर्म रहे हमारे डॉक्टर अक्षय अग्रवाल जी। सभी को मैं आज प्रणाम करता हूं। इस यूनिवर्सिटी की विकास में उन्हों का जो प्रदान है, हमारी यूनिवर्सिटी ने 12 साल में जो कुछ हासिल किया है, उसमें न केवल पदाधिकारी का, लेकिन हमारे सभी कर्मचारी, हमारे सभी अधिकारी, शासन प्रशासन के सभी लोग, उनका भी बड़ा भारी योगदान है।
तो मैं उन सबको भी नमन करता हूं। इस ऑनलाइन सिचुएशन में, इस पेंडेमिक कोविड-19 में जो व्यवधान आया, लेकिन अभ्यास में कोई व्यवधान न होना चाहिए, ऐसा हमने तय किया। और इसके लिए लॉकडाउन होने से पहले ही सभी को किस प्रकार से अभ्यासक्रम चालू रखना चाहिए उसका मार्गदर्शन किया। उसी प्रकार सभी कॉलेजों ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया, अपने विद्यार्थियों के साथ जो उतना हो सके संपर्क रखा, अभ्यासक्रम खत्म करने का पूरा प्रयत्न किया, परीक्षा भी लिया। हमने भी ये सब करते हुए कुछ वेबिनार किया, कल्चरल का भी कार्यक्रम किया, काउंसलिंग सेंटर किया। हमारे इनोवेशन काउंसिल के यंग टेक्नोक्रेट्स ने इस समस्या को समाधान के लिए भी बहुत इस पीरियड में काम किया। कुछ सैनिटाइजर बनाया, कुछ 3 शील्ड मास्क बनाया, सैनिटाइजर चैम्बर बनाया, टेस्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध की। इस प्रकार का बहुत सा, मैं आज ड्रोन की फैसिलिटी दिया पुलिस को, बहुत कुछ काम किया। हमने भी तय किया कि जो अभ्यासक्रम चला, और हमारी गुजरात में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत विद्यार्थी छोटे छोटे गांवों में है, तो हमने किया कि हम एक मॉक एग्जाम लेंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है, 1,30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाया। उसकी परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन का जो रिपोर्ट आया बहुत अच्छा रिपोर्ट है। फार्मेसी की परीक्षा हो गई तो उसमें 95% स्टूडेंट्स वो परीक्षा में अपीयर हुए। इतना ही नहीं, गुजरात के सभी तालुका के इंटीरियर गांव से भी विद्यार्थी बैठे। मेरे मोबाइल पर बहुत मैसेज आए, तो इतना तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसी परीक्षा में नागालैंड से भी विद्यार्थी बैठे। मेघालय की लड़की का जो वानफिंडाउन शोकिया नाम की जो लड़की है, इस खासी हिल्स शिलांग मेघालय, उसने अपीयर की एग्जाम। कश्मीर के नागरोटा गांव के अमीशा कौल ने परीक्षा दी। जम्मू डोडा से वान निकेता ने परीक्षा दिया। तो ऐसे हमारे पास और डेटा आने वाले हैं, विदेश से भी विद्यार्थी बैठे होंगे। तो इस प्रकार की लार्ज संख्या स्टूडेंट्स की संख्या में इसी प्रकार की परीक्षा लेने वाली हमारी यूनिवर्सिटी पूरे गुजरात में प्रथम नंबर की यूनिवर्सिटी बनी है इस कार्यक्रम को लेकर। स्क्रीन जाती रहे। आज इस 13वें स्थापना दिन के समारोह में इसमें कितना मस्त आवाज आ रहा है। सरकार की अपेक्षा है, प्रशासन की अपेक्षा है, समाज की अपेक्षा है, देश की अपेक्षा है, वो हम पूरी करने में पूरी लगन से लगेंगे। ये परिस्थिति के बाद, ये लॉकडाउन पीरियड के बाद बहुत कुछ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप सब पढ़ते हैं कि चाइना से करीब 1,000 कंपनी सोचती है कि हम चाइना से बाहर जाएंगे। Then India, it is the potential center, alternative center for the investment. तो जब ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी तो यूनिवर्सिटी की भी जिम्मेवारी बढ़ती है। हमें यूनिवर्सिटी में कुछ पेडागोगिकल चेंजेस करना होगा, संशोधन के नए आयाम शुरू करना होगा, लेबोरेटरियों को सुसज्ज करना होगा। तो इस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी का योगदान बहुत महत्व का रहेगा। तो पूरी लगन से मैं आज इतने स्टेक होल्डर्स लगे हैं। मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी 4,500 छात्र छात्राएं, फैकल्टीज, प्रोफेशनल्स फेसबुक लाइव में जुड़े हैं।
4,500 और अभी जुड़ते जा रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा संख्या है अभी तक का जितना सेलिब्रेशन हुआ, इसमें सबसे ज्यादा संख्या में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो जरूर जो कुछ अपेक्षा है सरकार की है, समाज की है, देश की है, उस पूरी करने में मेरी यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी बंधु, सभी विद्यार्थी, सभी अध्यापकगण पूरी लगन से काम करेंगे और इस देश के विकास के लिए यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, यूनिवर्सिटी विकास का केंद्र यूनिवर्सिटी बने, इसी प्रकार का हम प्रयत्न करेंगे। भगवान भी हमको शक्ति दे, भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़े रहे, आप सबका मैं धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। Thank you, sir, for inspirational and motivational words. We would definitely look forward to achieve the goals set by you under your visionary leadership. Now, I would humbly request Srimati Vibhavriben Dave, Minister of State for Education Department, to share few words with us. Ma'am, please, over to you. नमस्कार। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस 13वें स्थापना दिन के इस वेबिनार के तरफ से ये जो कार्यक्रम रखा है उसमें उपस्थित हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे परिवार के सबसे माननीय हमारे सीनियर मोस्ट मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, वाइस चांसलर से नवीन भाई, जुड़े हुए तमाम बीओजीज एंड जुड़े हुए तमाम स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स एंड स्टाफ, मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ कि ये शायद पहला, गुजरात का तो पहला है, लेकिन देश का कितना है ये मालूम नहीं है कि अपना स्थापना दिन का जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन वेबिनार से करते हैं। ऐसी ये पहली यूनिवर्सिटी बनी है। ये 13वां स्थापना दिन है, 12 साल पूरे कर दिए। तो 12 साल में हमने जो भी किया है, ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री जब यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे थे तब उन्होंने यूनिवर्सिटीज में बहुत सी नई यूनिवर्सिटीज, लॉ यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, योग यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो पूरे राष्ट्र में एकमात्र होती है, ऐसी भी यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था। उनमें से एक ये भी है जो यूनिवर्सिटी में पूरे स्टेट में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, 420 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं, 4 लाख से भी ज्यादा जिनके स्टूडेंट्स रहे हैं और सबसे ज्यादा स्टाफ भी इनके पास है, ऐसी सबसे बड़ी स्टेट की यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी। इसमें उन्होंने स्थापना नरेंद्र भाई ने की थी, वो जो सोच के की थी, मेरे को लगता है आज वो सोच पूरी मीन्स उसको हमारे जीवन में लाने के लिए पूरा मौका आज हमको मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री श्री विजय भाई ने भी हमारी पूरी नहीं मात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को टेक्नोक्रेट बनाने के लिए, उनको सबको जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में आएंगे उनको सबको ई नमो टैबलेट्स देके सभी स्टूडेंट्स के हाथ में एक टेक्नोक्रेट बनाने का मौका दिया है। वो भी आज मैं याद करती हूँ और उनको भी अभिनंदन करती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री श्री ने हमारी ये जीटीयू की जो है उसमें एक्सपेंशन के लिए भी जमीन देने में भी उन्होंने बहुत सी प्रक्रिया पूरी करके ये भी दिया है जिससे हमारी यूनिवर्सिटी और एक्सपांड हो पाए। मेरे को आनंद यह बात का है कि हमारी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट्स इनकी डिग्री तो मिलती है, नहीं मात्र इंजीनियरिंग लेकिन फार्मेसी, मैनेजमेंट का भी इसमें से और कंप्यूटर साइंस भी हम हमारी एजुकेशन लाइन में दे रहे हैं। मेरे को ये बात का ज्यादा आनंद है कि हमारी यूनिवर्सिटी में वो ओनली एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एमबीए का हम कोर्स देते हैं और विद्यार्थियों को ये भी हम सुनिश्चित करते हैं। मेरी एक गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें पेरेंट्स उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं। अगर वो अपने बच्चों को इनोवेशन में
और अपने हमारे स्टार्टअप में वो अगर हिस्सा लेते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उन पेरेंट्स को भी हम प्रोत्साहित करते हैं। ये यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा पैमाना है। हमारे गुजरात में बहुत सी आपदाएं आई हैं। हमारे नरेंद्र भाई ने हमको बताया है कि आपदा को अवसर में चेंज करने का मौका मिलता है। आपदा आती है तो हम अपने आप को चेंज करते हैं, और चेंज अपने हिसाब से पूरे दुनिया में एक बड़ा सा बदलाव ला के देने का एक मौका मिलता है, आपदा को अवसर में मिलाने का। और हमारे गुजरात में ये भूकंप हो या आंधी हो, कुछ भी हो, जो भी आपदा आई है उसमें सबसे ज्यादा निखरने के बाद काम भी हमारे गुजरात के लोगों ने किया है। हमारे गुजरात का स्टूडेंट्स, हमारे गुजरात की जो लोग हैं, वो लोग आपदा को अवसर में मिलाने का, अवसर में लेने का बहुत अच्छा मौका कभी छोड़ते नहीं है। ये अवसर कोविड-19 भी हमारे पास जो आया है, तो मेरे को ये लगता है कि इसमें से भी गुजरात के सभी लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज का जो माहौल है वो टेक्नोलॉजी का माहौल है। अभी भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी को आज देश में सर्वोच्च स्थान पे लिया जा सकता है, तो ये टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इसमें सबसे ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। हम हमारे नए भारत की जो बात करें, नए भारत की बौद्धिक संपदा जो अब तक कहा जाता था, अपने पेरेंट्स जो छोड़ के जाते थे, वो कितना बिजनेस छोड़ के गए हैं, कितनी कंपनी छोड़ के गए हैं, कितनी मिलकत छोड़ के गए हैं, ये हम तय करते थे कि क्या वो अपनी संपदा बच्चों को दे के गए हैं। लेकिन आज के नए भारत में ये संपदा मायने नहीं रखेगी। अगर कोई मायने रखेगा तो वो अपने बच्चों को वो कितने पेटेंट्स दे के गए हैं, कितना रिसर्च दे के गए हैं, कितना अच्छा दे के गए हैं, जो आने वाले समय में ये फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल जो है वो कुछ मायने नहीं रखेगा। तो ये एक मौका है हमारे पास कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने गुजरात को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर गुजरात बनाने में भी हमारी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। तो कोविड-19 का ये जो माहौल है, उसमें हम इस स्थापना दिन से तय करेंगे कि गुजरात का एक एक बच्चा, कोई भी बच्चा किसी भी इनोवेशन में आएगा, किसी भी स्टार्टअप में आएगा, और कोई भी नई बात होगी तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी उसमें सर्वोच्च स्थान पे रहेगा। ये बात हम अपने बच्चों को देख के जाने का हमको मौका मिला है, तो ये मौका हम जरूर अपनाएंगे और बच्चों को ये दे के जाएंगे। नरेंद्र भाई और विजय भाई, नरेंद्र भाई ने जो हमको दिया है और आज भी भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते जो दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को हमारा आने वाला कल हम कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत सी दिशाएं खोल के गए हैं, खोल के अभी रखी है नरेंद्र भाई ने। उसमें भी हमारे विजय भाई रूपाणी ने, हमारे मुख्यमंत्री श्री ने भी बहुत अच्छा उसमें माहौल बनाया है। कोई भी बच्चा किसी भी नए इंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसमें सपोर्ट देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री भी हमेशा तैयार रहते हैं। और मेरे को मालूम है कि गुजरात एक ऐसा है कि जहां पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी स्टार्ट करने का भी सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ने इनोवेशन पॉलिसी लाए हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप भी पूरे देश में जितने भी हो, इसमें से 76% स्टार्टअप हमारा गुजरात ने किया है। तो अभी ये मौका है गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी को, ये मौका है कि हम आने वाले कल में गुजरात को पूरे भारत में आत्मनिर्भर गुजरात, आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग देंगे। यही बात के साथ मेरी अपनी बात यहाँ पूरी करती हूँ। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। Thank you so much, ma'am, for your precious and inspirational words. Now, I would request Shri Bhupendra C. Chudasama, sir, our Education Minister of Gujarat, to address the gathering. Sir, please. बहन विभावरी बहन, श्रीमान नवीन भाई सेठ, श्रीमान खैर, मोहित गंभीर जी, जुड़े हुए सभी अध्यापक, विद्यार्थी बहनों और भाइयों, सबसे पहले
जीटीयू को हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत बधाई और मुबारक हो। अभी तक हम बाल्यावस्था में थे, अभी हम तरुण अवस्था की ओर जा रहे हैं, बाल में से तरुण बनने जा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी, बढ़नी ही चाहिए। इस मौके पर आपने विषय भी अच्छा पसंद किया है, नए भारत के लिए बौद्धिक संपदा। देखिए, समय बदल गया है पिछले 2 महीने में। किसी को कल्पना नहीं थी कि इतनी जल्दी ऐसा समय आएगा। हमारा सब प्लानिंग बिफोर कोरोना था, ये सब प्लानिंग आफ्टर कोरोना के लिए बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए आफ्टर कोरोना की जो स्थिति बनने वाली है, हम सबको मालूम होना चाहिए। पहले का प्लानिंग में कुछ बदल भी करना पड़ेगा। तो में हमें पहल करनी चाहिए हम सबको। मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत गहन चर्चा भी करनी होगी और आफ्टर कोरोना की दिशा भी तय करनी पड़ेगी। पूरे विश्व में ऐसी महामारी एक साथ नहीं आई। कहीं भूकंप आया, कहीं साइक्लोन आया, कहीं अकाल आया, कहीं फ्लड आया, लेकिन एक साथ पूरे विश्व में ऐसी महामारी नहीं आई। तो मैं मानता हूं कि जैसे नरेंद्र भाई आज पूरे विश्व को दिशा बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, और सुपर पावर को भी मानना पड़ा है कि नरेंद्र भाई और भारत की जो दिशा है, अभी लॉकडाउन के दरमियान लिए गए सभी निर्णय हैं, ये सभी सच साबित हुए हैं। तो आगे क्या करना, इसके लिए जीटीयू पहल करे, सबको साथ में जोड़कर एक भावी रणनीति क्या हो सकती है देश के लिए, एजुकेशन के लिए, हमारी खुद की और सामूहिक जीवन पद्धति, जीवन शैली, एजुकेशन पे क्या असर हो सकती है, तो असर का उपाय भी क्या करना है। मुझे लगता है पॉजिटिव असर ज्यादा होगी और विश्व के साथ कॉम्पीट करने के लिए हम एकदम तैयार हैं। ये कोरोना ने सिद्ध कर दिया है। मुझे भी मालूम नहीं था कि ये वेबिनार में इतनी सफलता मिलेगी। 30 तारीख से मैं और बहन विभावरी बहन, हमारे सचिव, सबने साथ मिलकर एक तय किया कि हर एक यूनिवर्सिटी को एक विषय दिया जाए और तज्ञ को बुलाया जाए। सभी रोज आते हैं, आज भी 2-3 वेबिनार है। मतलब ये हुआ, इस पद्धति के लिए हम तैयार हैं। विश्व में नरेंद्र भाई की अगुवाई है, तो देश में गुजरात की और गुजरात में जीटीयू की अगुवाई क्यों न हो।
इसीलिए भी हमें तैयार होना है। अभी तक हमारा जो व्यवहार चलता था वो इंडस्ट्री में हो, एजुकेशन में हो और कोई क्षेत्र में हो, ये भी बदलना पड़ेगा। मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन यूएस। नरेंद्र भाई ने नए भारत की कल्पना, आफत से अवसर में जाने की, यही मौका है। इस मौके का लाभ हमारे इंक्यूबेटर्स क्यों ना उठाए, नया संशोधन करे और जो चीज पे अभी तक हम मेड इन अदर कंट्रीज डिपेंडेंट रहे, वो चीज सभी उससे अच्छी क्वालिटी में हमारे विद्यार्थी नए इनोवेशन से समाज को क्यों नहीं दे सकते हैं। ये ताकत, ये शक्ति, ये बौद्धिक संपदा हमारे विद्यार्थियों में है, हमारे अध्यापकों में है, हम सब में है। हमारी जिम्मेवारी इतनी बढ़ गई है, मैं देखता हूं कि हमको दिशा बदलनी है और लोगों को एक अच्छी जीवन शैली पद्धति और रोजाना जीवन में जो हम चीज का, वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वो अच्छी तरह हमारी रिसर्च SSIP द्वारा इतनी अच्छी बने कि भविष्य में हमें कभी भी मेड इन अदर कंट्रीज के ऊपर आधार रखने की जरूरत न पड़े। मैं आशा रखता हूं कि हम व्यक्तिगत जीवन में अपने जन्म दिवस पे भगवान की प्रार्थना करते हैं, दर्शन करते हैं और कोई संकल्प भी करते हैं। ये हमारा अभी 15 दिन के पहले गुजरात का हैप्पी बर्थडे था। 1 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प किया कि जल्द से जल्द कोरोना से हम बाहर आ जाएंगे और सभी क्षेत्र में काम करने के लिए जुड़ जाएंगे। आज हमारा जन्मदिन है, वो गुजरात का जन्मदिन था तो गुजरात के लिए संकल्प किया। ये संकल्प हमारे काम के अनुसार करें। हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमें क्या काम करना है, ये सब आज के दिन हम सबको मिलकर एक संकल्प करना है। ज्यादा से ज्यादा, वैसे आप सबकी मदद से, सभी यूनिवर्सिटियों की मदद से, स्टूडेंट स्टार्टअप में हम देश में पहले नंबर में हैं। मैं खुद, यहाँ हमारे अमित भी दिखते हैं, बाकी सब केतन भी दिखते हैं, सब पहचाने वाले चेहरे दिखते हैं। यू ऑल आर विटनेस। हमारी बहन भी बैठी है। सीधे ये इंक्यूबेटर के साथ 5 की संख्या में हो या 500 की संख्या में, उसको मोटिवेट करना, अच्छा काम अच्छी तरह कर सके इसलिए सुविधा देना, एक जगह देना, ये सब गुजरात ने शिक्षा डिपार्टमेंट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमने किया है। तो आज हमारा ये संकल्प क्यों न हो कि हमारा विद्यार्थी, हमारा रिसर्चर केवल कोई एक क्षेत्र में संशोधन न करे। आज कोरोना से सभी क्षेत्र प्रभावित हैं।
सभी क्षेत्र प्रभावित है। इंडस्ट्री प्रभावित है, ट्रांसपोर्ट प्रभावित है, एग्रीकल्चर प्रभावित है, टूरिज्म प्रभावित है, सभी क्षेत्र प्रभावित हैं। तो सभी क्षेत्रों में इस प्रभाव से निकलने के लिए क्या करें? ये टूरिज्म के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसा इनोवेशन, विचार, ऐसा इनोवेशन आइडिया हम करके देश को दे, समाज को दे। मुझे लगता है आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण दिवस पे हम सबको एक संकल्प, और हमारे में क्षमता है, हमेशा बोलते हैं हम सबको एनकरेज करने के लिए, आई कैन, वी कैन, और पूरी दुनिया देख रही है इंडिया कैन। हम सब वी कैन में जुड़ जाए और हमारे नए संशोधनकार जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करे और समाज को दिशा देने का काम गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी करे। आप सबने बड़ी भारी संख्या में इसमें भाग लिया है। मैं आप सबका शिक्षा मंत्री के नाते बहुत बहुत स्वागत, आभार व्यक्त करता हूं। और वाइस चांसलर ने मुझे एक काम दिया है कि अभी डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्म शताब्दी चल रही है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री स्पर्धा का आयोजन किया था। गुजरात में से 9 वर्ष से 73 साल के स्पर्धकों ने भाग लिया था। It was 148 competitors who took part, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में। इनमें से 14 एंट्रीज पसंद करी है और श्रेष्ठ 3 जो स्पर्धक आएंगे वो जीटीयू की यूट्यूब पे चैनल पे प्रकाशित करेंगे। ये 14 को और पहले 3 को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मतलब ये हुआ कि हमें विषय रखना। दूसरा भी, अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 मई की सेलिब्रेशन के लिए चित्र, काव्य और निबंध की स्पर्धा का आह्वान किया था। आप होगा, आप नहीं मानेंगे, ऐसे वातावरण में भी 2,09,000 हमारे सभी स्पर्धक, हमारे विद्यार्थी ने भाग लिया। वैसे सामान्य दिवस होता है, उसमें भी इतनी स्पर्धा नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि इसी स्थिति में हमने ये एडजस्ट होने का मन बना लिया है। अगले समय में हमें सबको साथ मिलकर ऐसा काम करना है कि अगले भविष्य में वो काम में आए। मैं जीटीयू को फिर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। Thank you, sir. Your words are always act as torchbearer and motivators for GTU. Thank you so much for your kind words, sir. Once again, I would request now our today's chief guest, Shri Vijaybai Rupani, Chief Minister of Gujarat, to address the occasion through inspirational message with us. Can we have the message, please?
नमस्कार साथियों, जीटीयू के वाइस चांसलर श्री नवीन सेठ, जीटीयू के सभी यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी लोग, अधिकारी लोग, शिक्षणगण और मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले तो मैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को 13वें स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहा है। इसका प्रभाव हर सेक्टर में हुआ है। एजुकेशन सेक्टर पर भी इसका काफी असर हुआ है। कोरोना की इस लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। यह एक लंबी लड़ाई है। इसलिए हमें अभी से स्वयं को मौजूदा हालात के अनुसार ढालना होगा। हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। साथियों, एक शिक्षित और जागरूक समाज ही कोरोना के साथ संघर्ष करते करते उनके साथ जीना सीख सकता है। मेरे आप सभी से अपील है कि आप सभी अपने अपने स्तर पर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करें। कोरोना से कैसे बचाया जाए, इसके बारे में लोगों को बताइए। कोरोना के साथ कैसे जिया जाए, इसके बारे में भी लोगों से बात करें। लोगों को जागरूक करने और उन्हें जानकारी देने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। आजकल बहुत सारी चीजें तो ऑनलाइन और मोबाइल से ही होती है। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के लोगों को कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप सभी टेक्नोलॉजी के संबंधित है, तो आपके पास इसके लिए कुछ नए आइडियाज भी हो सकते हैं। उनका भी उपयोग कीजिए। और इस समय पर हर सेक्टर के बुद्धिजीवियों को आगे आने की जरूरत है। आज का यह कार्यक्रम, जिसे आपने नए भारत के लिए बौद्धिक संपदा का नाम दिया है, मौजूदा समय के संबंध में बहुत ही सटीक है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और नए भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हमें इस बौद्धिक संपदा की जरूरत पड़ेगी। आज का बौद्धिक धन मतलब गुजरात और भारत के युवा पूरे विश्व भर में भारत सबसे युवा देश में से एक है। हमारे यहाँ की 65% की आबादी युवा है और ये युवा ही हमारे बौद्धिक धन है। जीटीयू के युवा विद्यार्थियों ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनोवेशन इंडिया वगैरह जैसे अभियानों को प्रोत्साहन देकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नए भारत के स्वप्न को और मजबूत बनाया है। अब इसमें हमें आत्मनिर्भर का विचार को भी जोड़ना होगा। कोरोना से लड़ने के लिए और विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने के लिए युवाओं को बौद्धिक संपत्ति का ही सही उपयोग जरूरी है। साथियों, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल का मंत्र दिया है। आदरणीय मोदी जी ने इस आह्वान पर जीटीयू के युवा इंजीनियर्स आईपीआर के माध्यम से आगे आएंगे और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भारत और गुजरात के युवा बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों में ही काफी आगे है। गुजरात ने भी आई क्रिएट संस्था के माध्यम से देश के युवाओं को नए इनोवेशन के लिए एक नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप अभियान में जीटीयू का बहुत बड़ा योगदान है। आईपीआर से संबंधित लगभग 450 से अधिक वर्कशॉप का आयोजन कर जीटीयू ने गुजरात और पूरे देश में इस क्षेत्र में एक जागरूकता लाने का प्रयास किया है। मैं आपके इस प्रयास की सराहना करता हूं। आपका यह प्रयास देश के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का काम करेगा और आपकी यह कोशिश दूसरे स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करेगी। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में गुजरात के शैक्षणिक संस्थाओं ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। देश और विदेश में छात्र हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं।
जीटीयू ने भी गुजरात के शैक्षणिक स्तर का मान बढ़ाया है। आज के इस स्थापना दिवस में आप सभी यह संकल्प ले कि हमें इसे और आगे तक ले जाना है। गुजरात के बौद्धिक धन का सही उपयोग हमें करना है। यही बौद्धिक धन प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत का निर्माण की नींव है और कोरोना महामारी के इलाज के उपाय को ढूंढने में भी हमारे ये बौद्धिक धन अग्रणी रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प किया है उसे यही अंजाम तक पहुंचाने में गुजरात का योगदान सबसे अधिक हो। हमें अपने नए खोज और नवाचार से आत्मनिर्भरता में गुजरात को नंबर 1 बनाना है। मेरे राज्य में प्रतिभावान युवा की कोई भी कमी नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे राज्य के प्रतिभा युवा मेरे इस विचार को सही अंजाम देंगे। कोरोना के इस संकट काल के कारण आने वाले समय में हमें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि आप सभी अभी से इसके लिए तैयार हो जाइए और दूसरों को भी इसके लिए तैयार करें। न झुकना है न रुकना है, इस मंत्र के साथ कदम मिलाकर चलना है। हमें जीवन का मूल मंत्र को बनाए और अपने विचारों से, अपने प्रयासों से, अपनी उपलब्धियों से गुजरात की बौद्धिकता का प्रमाण पूरे विश्व को दे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जीटीयू के स्थापना दिवस उसकी पहल गुजरात के बौद्धिक धन का सही उपयोग करेगी और आत्मनिर्भर बनाते हुए उज्जवल भविष्य का निर्माण भी करेगी। आप सभी को एक बार फिर से 13वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को लिए इस शैक्षणिक वर्ग की सफलता से भरा हो, यही हमारी शुभकामना। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। धन्यवाद। Thank you, sir, for insightful, inspirational, and kind words. Now I would request Dr. Sanjay Chauhan, sir, who is professor with GTU's Graduate School of Pharmacy, to give vote of thanks. Sir, please. Namaste. I am honored and lucky to have an opportunity to give a vote of thanks on this special day, 13th Foundation Day of Gujarat Technological University. We heartily grateful to our Honorable Chief Minister Sri Vijay Rupani, where he mentioned the need of IPR-enabled innovation and use of technology to make nation Atmanirbhar. We also thankful to our respected Education Minister Sri Bhupendra Singh Chudasama ji for his valuable and enlightening thoughts and wisdom regarding possibility of reforms and changes in education systems and how to overcome from these pandemic situations. We also thanks to respected Vibhavri Ben, Minister of State for Women, Child and Education, and she has also expressed his gratitude and some initiations of Government of Gujarat. We also would like to thanks to our Honorable Vice Chancellor, Sri Professor N.R. Seth sir, for motivation and encouragement for organization of such a first in Gujarat Digital Foundation Day celebrations. We also thankful to our respected Registrar sir for continuous guidance and support. I would like to thanks to all the media partners and the personals for this wide coverage among the electronic and print media. I am also express my sincere thanks to GTU Parivar, especially to all the GTU stakeholders, students, faculty members, principals, trustees, and supporting staffs to participate and make this event memorable and successful. Once again, I thanks to our respected sirs as well as the Vice Chancellor of other university who has joined these webinars, BOG members, principals, and aspiring youth for participation and encouragement. Thank you. Thank you very much. 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 Thank you. Than
Thank you, sir. Now we would begin with the second part of today's celebration, which is expert session. To share his expertise on intellectual property for New India, नए भारत के लिए बौद्धिक संपदा, we have with us Dr. Mohit Gambhir. Dr. Mohit Gambhir is working as the Innovation Director, MHRD, Innovation Cell, Government of India. Dr. Gambhir is involved in multiple initiatives given by MIC, such as Singapore India Hackathon 18 and 19, Smart India Hackathons, establishment of IICs, ARIIA rankings, NISP, and have active membership of many other various high-level committees. He has also taken charge of Government of India's flagship program, Smart India Hackathon 2020, as Member Secretary of Executive Committee. By qualification, Dr. Gambhir is a PhD in Computer Engineering and LLB in IPR. He has extensive work experience in IP space, such as patent portfolio generation, advising inventors, corporates in channelizing their IP activities and technology transfers, etc. Dr. Gambhir's latest venture, Verispire, is engaged in creating valuable business assets for its clients by safeguarding their IP rights. So now, I would request Dr. Gambhir to enlighten us on intellectual property for New India. Sir, please. Over to you, sir. Thank you so much. माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री, वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, सभी साथियों को, सज्जन जिन्होंने आज ये वेबिनार ज्वाइन किया, और जीटीयू को अपने 13वें जन्म दिवस के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। और जैसा मुझे अभी ज्ञात हुआ कि लगभग 450 प्रोग्राम तक थे, और यहाँ दिल्ली में बैठ के हम लोग जानते भी हैं, देखते भी हैं कि जीटीयू ने जो एक अग्रणी स्वरूप लिया है आईपीआर, पैटेंट्स और बाकी अपने गुजरात की बौद्धिक संपदा को आगे चैनलाइज करने के लिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि कैसे एक इतनी यंग यूनिवर्सिटी जो अपने टीनेज में एंटर कर रही है, एक परचम लहराने के तौर पे पूरे देश में सबको रास्ता भी दिखा रही है कि कैसे आप अपनी बौद्धिक संपदा को प्रोटेक्शन के तौर पे और किस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, आप सबको कुछ स्लाइड्स हैं जो मुझे पहले लगा था कि जरूरत पड़ सकती है, बट ये जानने के बाद कि इतने सारे प्रोग्राम्स और ये सब किया गया है, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत बेसिक्स की कुछ जरूरत होगी। फिर भी मैं बहुत ही जल्दी से तेजी से बढ़ूंगा और साथ ही कुछ अपने व्यू शेयर करूंगा कि जैसा हमारा आज का जो हमने विषय लिया है कि आने वाले समय में भारत की क्या क्या हमारी जरूरतें हैं, हमें क्या ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे हम और अग्रसर हो सकें। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो क्या ये समय जो आपदा का है, अवसर में बदलना है, कैसे बदलना है, उस रास्ते पे कैसे चल सकते हैं। मेरे विचार हैं, हो सकता है आप लोग जब सुने किसी के बहुत और भी अच्छे विचार हों, तो हमेशा से मेरा मानना है हमें कोलैबोरेटिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए। जनरली जो हम अपने देश में ऑब्जर्व करते हैं या देखते आए हैं कि साइलोस में सभी लोगों को काम करने की कुछ आदत सी पड़ी हुई है, तो वो हमें एक मिथ तोड़ने की भी बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और कहीं कुछ लेवल पे गुजरात ने वो करके दिखाया है कि अलग अलग विषयों के, अलग अलग रिसर्च एरियाज के लोग कैसे जुड़ के और नई नई चीजें बना सकते हैं और कैसे बढ़ सकते हैं आगे से आगे। बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से मैं ये चीजें स्किप करूंगा कि बौद्धिक संपदा क्या है। अच्छा, मैंने अपनी स्लाइड्स इंग्लिश में इसलिए रखी हैं कि कुछ ऐसे साथी हैं मेरे जो पिछली बार, मुझे याद है अभी 15 दिन पहले मैं SSIP और गुजरात के ही कुछ साथियों से वार्तालाप कर रहा था, तो मुझे उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स मिले कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा सा कुछ आप लिखिए कि जिन लोगों को जो नहीं, तो मैंने स्लाइड्स अपनी इंग्लिश में बनाई और मैं शायद ज्यादातर मैं बोलूंगा अपना हिंदी में। तो बौद्धिक संपदा जो हमारी रही है,
जैसा हमने सभी ने समझा है, जाना है, देखा है कि मोर और लेस दिमागी स्वरूप हमारा, ऐसी ऐसी संपत्ति जो हमारे दिमाग से उपजी है। बहुत सारी चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारी दिनचर्या शुरू होती है सुबह ब्रश करने से लेके काफी सारे आयाम हैं हम स्थापित करते हैं, अपनी गाड़ी से, स्कूटर से, बाइक से, फोन से लेके बाकी जितनी भी चीजों तक हम बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारे पास पूरे दिन भर ये बौद्धिक संपदा के स्वरूप हम देखते हैं। तो हमारे देश का जो परिप्रेक्ष्य रहा कि ऐसा रहा है कि हमने, जैसे हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः। हेलो, Yes, sir. Now you are audible. ओके। तो हम सबकी जितनी भी सोच रही है वो ये है कि हमें साथ में मिलना है। बहुत पहले ऐसा नहीं था, अगर मैं बात करूं सदियों पहले, कुछ शताब्दियों पहले, पेटेंट्स, आईपीआर कोई नहीं सोचता था, और तब भी हम पूरे दुनिया में, विश्व के ऊपर भारतवर्ष का परचम लहराता था। तो ऐसा क्या था, ऐसी क्या चीज हुई कि हमें इस सोच की तरफ जाना पड़ रहा है, या हमें जो वैश्वीकरण है उसकी तरफ कुछ भागना पड़ रहा है? तो कई सारे विचार मन में उठते हैं कि क्या इनकी जरूरत है, क्या इनकी जरूरत नहीं है, क्या हमें इसी तरीके से आगे चलते रहना चाहिए। तो साथियों, हुआ क्या कि बहुत सारे विश्वव्यापी जो मंजर हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आज परिवार बड़ा होता जा रहा है तो अलग अलग भाई हैं, दुकान है, व्यापार है, तो माँ बाप भी आजकल चाहते हैं कि वक्त रहते ऐसे ऐसे सामंजस्य बना दिया जाए कि सब कुछ मिल बांट के आगे की तरफ बढ़ता रहे। उसी आयाम में हमारे पास वाइपो बना, WTO बना कि देश भर दुनिया के अलग अलग देश हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहे, व्यापार अच्छा चले। हो सकता है कुछ देश हैं किन्होंने अपनी वैचारिक हैं जो अपनी लीड लेना चाहते थे, उन्होंने हमारी संपदा पे कुछ अटैक किया, कुछ नहीं किया। पर बदलते परिवेश में, बदलते सामंजस्य में अब मुझे ऐसा लगता है ये एक जो जिसे सारी दुनिया आपदा के तौर पर मानती है, उसे अवसर के तौर पे भी हम लेके जा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। 2000 की हमारे पास सोचा भी नहीं होगा, किसी ने देखा भी नहीं, तो हर वक्त हमारे पास अवसर लेकर आते हैं। हम बोलते हैं हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा जो है, इट्स इमूवेबल, नहीं निकलती है, मूवेबल है। अलग अलग बहुत तरीके हैं, ये सब आप लोगों को पता है। जितना मैं समझता हूँ 400 450 बार जो जितने सेमिनार्स होने के बाद शायद ये सब आप लोग के डीएनए में आ चुका है। व्हाट इज आईपीआर, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जितना कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक जो हम हिस्ट्री की बात करें अगर, तो 1847 से हम अपने देश में बात करें, जो हम चले, हम आगे बढ़े, कि कहीं हमारे पास कॉपीराइट लॉ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू निकला, फिर आगे बढ़ते चले, फिर हमारे पास पहला पेटेंट एक हुआ 1856 में। और बहुत सारे सज्जन यहाँ बैठे हैं, गुणीजन हैं, उन्हें पता भी होगा जिन्होंने पढ़ा है कि ये वो पंखे झलने का, जो कमरे के अंदर एक पंखा झला जाता था ऊपर कपड़ा बांध के, उसकी मशीन बाहर बनाई गई थी। तो अल्फ्रेड डी पेनिंग साहब ने उसका पेटेंट जो है सबसे पहले अपना कराया था। फिर बहुत अलग अलग सन में 1872 है, 1911 है, जिसमें हमारा इंडियन पैटेंट एंड डिजाइन एक्ट लाया गया। फिर हमारा 1914 में नया एक एक्ट, इंडिया लेजिस्लेटर जो है कॉपीराइट एक्ट नया बनाया गया। इस तरीके से धीरे धीरे हमने कोशिश करी कि हम दुनिया के साथ अपनी चीजों को, व्यापार को अलाइनमेंट कर पाए। थोड़ी सी बौद्धिक संपदा जो हमारी थी, दूसरों की थी, हम उनको लेकर आ पाए। अच्छा, कहीं कोई ऐसी एक बहुत चीज है जो मुझे कचोटती है। आज मुझे इस पैटेंट्स डोमेन में, आईपीआर में लगभग 15-16 साल हो गए हैं कि जब मैं काम करता हूँ, विदेशों में बहुत घूमा हूँ, ट्रैवल किया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज कचोटती थी कि भाई ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले जो फाइल करेगा हम उसको उसका राइट प्रदान कर देंगे। इससे बहुत सारी चीज ऐसी थी हमारे देश में खास तौर पे, जहां पे लोगों तक रीच नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो जाने अनजाने हम अपनी चीज, अपनी बातें, अपनी संपदा, अपनी बौद्धिक संपदा दूसरों से बहुत उत्सुकतावश शेयर करते हैं, है ना। जहां अभी जितना मैं जान पाया हूं, जो आपके गुजरात में स्टार्टअप पॉलिसी निकली है या बाकी आईपीआर पॉलिसी जिस हिसाब से निकली, उसने बहुत अच्छा काम किया है लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाने में कि कैसे हमें अपनी जो
बौद्धिक संपदा है, किस तरीके से हैंड एक्सचेंज होने चाहिए, किस तरीके से हमें दूसरे लोगों को शेयर करना चाहिए। फिर हम आते हैं कि हमें लेकिन अब इन सब की जरूरत पड़ती क्यों है, हमें ये करना क्यों है। अगर मैं बार बार आपको बात करूं, बार बार बोलूं कि वाई हमें पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब कराने क्यों है ना, इसका एक बहुत देखिए पहलू है। आज हम बोलते हैं पुराने समय की भी बात लें, व्यापार होता था, हर चीज जुड़ती है। और गुजरात में मुझे नहीं लगता है मुझे व्यापार के बारे में बात करने की बिल्कुल भी जरूरत है, आप लोगों ने पूरी दुनिया को व्यापार सिखाया है। लेकिन अब क्या है, अब इनोवेशन पे अब आप लीड कर रहे हैं, तो वही चीज यहां लागू होती है। बौद्धिक संपदा है, आपकी इनोवेशन को, नवाचार को बढ़ावा मिलता है, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। आप देखें यूएसए है, अमेरिका है, अमेरिका ने पिछले इतने सालों से क्यों विश्व पटल पे राज किया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि उनका आईपीआर का जो कानून है काफी अच्छे तरीके से उसने प्रोटेक्शन दी। जिसने कोई नए नए इजाद किए, आयाम किए, उन सबको उसने प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दिया, अपना कानून इतना अच्छा बनाया कि अगर किसी ने कोई नई खोज करी है तो उसको उसका हक, उसका डिजायर्ड जो ड्यू है वो सब उसको मिले। कुछ वर्षों से चाइना ने इस चीज में बहुत आगे भागने की ओर अग्रसर वो रहा है, काफी और बहुत बहुत तेजी से उसने इस चीज में अपने पड़ाव डाले हैं। पिछले साल अगर आप डेटा में जाने की कोशिश करें, थोड़ा सा देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर चाइना की कंपनीज ने लगभग 40 से 50% जो है चाइनीज कंपनीज को पेटेंट ग्रांट। तो अंदाजतन आप अगर देखेंगे कुछ साल में, 2 साल 4 साल में, जब ये सारी टेक्नोलॉजी यूज में आने लगेगी, लोग उपयोग करना शुरू करेंगे, तो उसका रेवेन्यू, उसका पैसा, कुछ हिस्सा कहाँ जाना शुरू होगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी या वो जो रिसर्च थी उसका जो प्रोटेक्शन है वो किसी और के पास है। तो बदलते परिवेश में बहुत 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 ज्यादा जरूरत हो चुकी है कि हम लोग आईपीआर के बारे में, आईपीआर की प्रोटेक्शन के बारे में सोचें। अच्छा, सोच तो लिया, ये भी चल रहा है, बहुत लोगों को अवेयरनेस हो गई, बहुत हम फाइलिंग करते हैं। एक मुझे थोड़ा सा एक जो सोचना मेरा फिर से आता है, हम अपने देश में आईपीआर की बहुत ज्यादा बात करते हैं। हमारे पास एक सबसे बड़ी कमी जो मैं महसूस करता हूं अभी भी, मैं पॉलिसी डिसीजंस में कहीं इन्वॉल्व हूं या और चीजों में हूं, मैं ये महसूस भी करता हूं, हमारे पेटेंट्स हम इस तरीके से या इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के नहीं फाइल कर पाते हैं। बहुत कम हैं जिनके मैटर, जिनकी क्लेम, जिनकी इन्वेंशंस हम बहुत अच्छी लेकर जा पा रहे हैं। अब हमने जागरूकता फैलाई, अब हमारे पास समय है ऐसा कुछ करने का कि हम ये देखें कि हमारी जो आईपी है कैसे वो विश्व पटल पे तरक्की कर सके, कैसे वो हम अगर कोई प्रोटेक्शन कराते हैं तो वो कैसे हम उसका असल का फायदा भी उठा सकें। जो कहीं कहीं कमी रह जाती है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, बट वो फिर भी मेरा मानना है हमें कमी मुझे बहुत दिखती है। उसके लिए अब मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, जीटीयू एक बहुत अग्रणी संस्थान है कि आप क्लेम मैटर लिखते हैं, लोगों को प्रोटेक्शन भी जितने कराते हैं, अब थोड़ा हम उधर ध्यान देना ज्यादा शुरू करें तो कमर्शलाइजेशन का जो हमारा रेट है, अल्टीमेटली फाइनली अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव इज हमारा कमर्शलाइजेशन उस संपदा का हो सके जिससे पैसा हमारे पास, हमारे देश में आ सके या हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, वो उसका फाइनल उपक्रम है। नहीं तो ये बहुत बहुत एक खर्चीला सौदा हमारे लिए साबित होता है। और मैं नहीं चाहता कि, जानता हूं और मैं मानता हूं कि कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जिसमें सिर्फ खर्चा हो और कमाई ना हो। I think just a sec, I'm not able to move। हाँ, हमारे 7 तरीके के जनरल हम आईपीआर की बात करते हैं, ये भी आप सबको पता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मॉडल, डिजाइन, ज्योग्राफिकल, ट्रेड। अच्छा, जीआईस मैंने देखा या जानता हूं जितना, अब जो परिप्रेक्ष्य है हमारे पास, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, गुजरात बहुत अग्रणी इसमें भी है। मैंने कुछ कोशिश करी, शायद आप लोग जानते हैं, कुछ लोग जो नहीं भी जानते होंगे कि हमारी गुजरात ने कैसे कैसे कितने नए नए जीआईस किए हैं। कोई पटोला साड़ी है, हमारे आम हैं गिर के, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं। वो भी मैंने कुछ कवर करने की कोशिश करी, तो क्विकली मैं उसको समय का ध्यान रखते हुए बढ़ाता हूं आगे। जैसे ये देखिए, मैं अभी बात कर रहा था, हमारे पास संखेड़ा फर्नीचर है जो कि हमारा
जीआई है बहुत बड़ा, जैसे हमारे पास कच्छ की एम्ब्रॉयडरी है, ये भी हमारी एक प्रोमिनेंट जीआई है। फिर सूरत की जरी है, तंगलिया शॉल है, कच्छ की शॉल है ना। गिर का हमारा ये अभी आम जिसकी मैं बात कर रहा था, भालिया गेहूं है, पटोला साड़ी बहुत पहले जीआई हमारा बना। लेकिन ऐसा करने का फायदा क्या है, ये हमने किया क्यों, इसको करने का फायदा आप देखें। लघु उद्योग, हम एसएमईज की बात करते हैं, माइक्रो हमारी इंडस्ट्री है, छोटे छोटे उद्योग हैं, क्लस्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन कैसे देंगे। आज अगर हमने बोला हमारे पास, जैसे हम गए, हमारा सूरत का जरी क्राफ्ट है या हमारी पटोला साड़ी है, हम उस जगह पे अब जितने भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, हमने उस क्लस्टर को ये फायदा पहुंचाया कि इस नाम से ये जाना जाएगा, जहां भी जाएगा वो जगह फेमस होगी। सारे के सारे जितने हमारे जो वहां पे व्यापारी गण हैं या छोटे लोग हैं जो अपना दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करते थे, जिनको फायदा नहीं हो पाता था जीआईज और ये सब कराने से, हम वो फायदा उन तक पहुंचा पाएंगे। अच्छा, अब इस सब को कराने का जो मैंने ये पॉइंटर्स भी कुछ लिखे हैं कि भी इनका फायदा क्या है। बहुत ग्लोबल कंपटीशन हमारा इंक्रीज होता है, हम बैरियर एक दूसरे के कम कर सकते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती है हम आपस में रिसर्च कोलैबोरेटिव करके भी जा सकते हैं। तो पैटेंट कराना क्यों या जीआई कराना क्यों, आईपी कराना क्यों, एक आपकी पहचान, दूसरा आपकी रिसर्च, उसके बाद आपके काम की पहचान, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन, दूसरे अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो फिर से आपको एक आयाम आपके लिए स्थापित होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि भी हाँ मैं ये कुछ कर सकता हूं। और सही मायने में जो उसका इन्वेंटर है या जो उसका जनक है, उसके इंटरेस्ट, उसको भी प्रोटेक्ट करना। ऐसा नहीं हो कि हम अवसरवादी ताकतों के हाथ में, जो सही मायने में इजाद करता है, खोज करता है, नवाचार को ला रहा है, हम उसको सप्रेस कर दें, उसको दबा दें। हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी भी अभी कह रहे थे, एसी एंड बीसी, है ना। बहुत लोग पढ़ते हैं, कहीं हम बोलते थे जी ये बीसी में हुआ, ये एसी में हुआ, हम कुछ सन लिखते थे। लेकिन अभी वो क्या हो गया आजकल, आफ्टर कोविड बिफोर कोविड, है ना, काफी कुछ इस तरीके से बढ़ गया। तो हमने कोशिश करी मैंने कि भाई प्री कोविड पोस्ट कोविड क्या बदल रहा है, क्या चल रहा है। तो ज्यादातर अगर हम देखें तो जितनी हमारी स्टार्टअप्स हैं, जितनी हमारी कंपनीज हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, आइडियाज जिनके जितने चल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये मेरा मानना है कि भाई कोई बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति है। लेकिन बदलाव की स्थिति ना होने के बावजूद हमारे पास पैसे का क्रंच है, हमारे पास शॉर्टेज है कैपिटल, जिससे हम अपना बिजनेस या धंधा कर रहे हैं। तो अब हम इस समय में कर क्या सकते हैं। पहली चीज, अगर हमारे पास कोई हमने प्रोटेक्शन ऑलरेडी करा रखी है तो उसको यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और या बिजनेस एक्सपेंशन की सोच सकते हैं। मार्केट में कोलेटर रख के अपनी आईपी को हम कुछ उससे पैसा भी ला सकते हैं, उससे आगे बढ़ भी सकते हैं, कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ करा नहीं है और हमारे पास आइडिया भी बहुत ज्यादा सॉलिड है, तो हम करेंगे क्या। तो ऐसे काम जो कि लॉकडाउन के फेज में लोग बोलते हैं अवसर जिसे हम कह रहे थे, तो हम उस सोच पे ज्यादा लगाएं कि हमारी किस चीज के लिए क्या क्या हमारी संपदा हम बना सकते थे, हमें उस संपदा को कैसे अपने तक सीक्रेट रखना है। क्योंकि आपके पास अभी पैसा नहीं, संपत्ति जो है आपकी या संपदा है, उसको चलाने के लिए कैपिटल, कैपेक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सब आपको प्रोसेस में भी रखना है। और पेटेंट प्रोसेस को हाँ हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उस आइडिया को अपने तक संजो के भी रखें। ऐसा नहीं है कि हम उस आइडिया को बाहर रखें। अनटिल एंड अनलेस हमने प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल नहीं किया, हमें आगे नहीं किसी को लीक करना है। मैं अक्सर अपनी टॉक्स में ये भी बोलता हूं, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई क्यों जरूरी है, क्यों है। तो मैं मेरा मानना होता है, जैसे हमारे घर में नया जीवन आता है, एक बच्चा आता है, तो हम एक हमारे यहाँ सेरेमनी सभी के पास होती है कि कुछ दिनों में उनका नामकरण किया जाता है नए जीव का। वैसे ही अगर हमारी नई खोज होती है, अगर हमने कुछ नया इजाद किया है, नई इन्वेंशन करी है, तो उसके लिए भी नामकरण जरूरी है। हमें ये सोच, ये और वो नामकरण का मतलब से मेरा है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हम बच्चे के लिए जाते हैं, हम अपना बोलते हैं जन्म का सर्टिफिकेट दे दीजिए, है ना। वैसे ही हमारी खोज के लिए, तो मेरा मानना ये पैरेलल्स हमें ड्रॉ करने की हर नागरिक को इस देश के ये जरूरत है। छोटी से छोटी चीज आती है तो जो जानकार है आप उससे बात करें, कंसल्ट करें, एनडीए के थ्रू करें, एक कागज पे एग्रीमेंट सिंपल साधारण भाषा में भी लिखें कि जो आप शेयर कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल है, और उसको आगे बढ़ाएं ताकि हम आगे चल सके, एक इकोनॉमी के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकें। फिर जैसे हमने कहा कि आप अपने लॉकडाउन के दौरान जितनी भी हमारी फैकल्टीज और स्टार्टअप्स ये सब क्या कर सकते हैं।
अपनी इन्वेंशन को कैप्चर करने के लिए आप बहुत सारे प्रोसेसेस बना सकते हैं कि जैसे एक डॉकेट मैकेनिज्म होता है, किसी ने कुछ सोचा, हम डेली डायरी बोलते हैं। ऐसे मुझे याद है मेरी कंपनी में अक्सर मैं बोलता हूं कि जो पहले हम करता था, मैं यहाँ सरकारी ये जिम्मेवारी लेने से पहले, तो एक ब्लॉग है, एक वेबसाइट है या एक डायरी का आयाम दिया है कि आप रोज की एंट्री करिए। अटेंडेंस नहीं चाहिए मुझे, आपकी हाजिरी नहीं चाहिए, मुझे आपका थॉट प्रोसेस चाहिए, आपने क्या सोचा है, आप एक लाइन लिख दीजिए, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। आपका काम करना नहीं करना ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है, आप उससे आगे बढ़ेंगे, वो आपकी ग्रोथ है, आप बढ़ेंगे तो मेरी कंपनी बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर हम नागरिक, हम सिटीजन्स काम अच्छा करेंगे, हमारी सोच अच्छी रहेगी, तो हमारी विश्वविद्यालय है, हमारी कंपनी है, वो बढ़ेगी, हमारा राज्य बढ़ेगा, तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। अल्टीमेटली वी विल बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमें शायद अपनी दिनचर्या में लेकर आ जानी चाहिए, हमें अपनी दिनचर्या बना लेनी चाहिए कि कोई भी अच्छी से अच्छी सोच हो, थॉट प्रोसेस हो, हम उसको डॉकेट करें, हम उसे कहीं लिखें, हम उसे फेंके नहीं, हम उसे जाया नहीं करें। आप देखेंगे एक विश्व पटल पे एक बहुत अच्छी एक स्टडी है, एक रिसर्च है, शोध है कि ज्यादातर 80 से 90% जो आइडियाज होते हैं वो वैसे ही चले जाते हैं। कारण हम ना तो उसे या तो लिख पाते हैं, हम ना ही उसे संजो पाते हैं। आज हमने कुछ सोचा है, कुछ जानकारी ली है और रात तक होते, नींद तक आते आते भूल जाते हैं, लिख नहीं पाए, अगले दिन फिर हम अपनी दिनचर्या में लगते हैं। तो जैसे पुराने जमाने में या आज से, और अब तो बहुत नया साधन है, हमारे पास मोबाइल है, फटाक से हम कुछ कुछ लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आज भी मैं बात करूं जो 55-60 प्लस होंगे या हमारे पिताजी के दौर के हैं, आप देखिए एक छोटी सी नोटपैड या एक डायरी जेब में रहती है और साथ में पेन टंगा रहता है। तो क्या होता है कि वो साथ में कुछ लिखे, कुछ हिसाब से वो जो आइडिया आया वो भी, उस दिन की दिनचर्या भी कुछ कुछ लिखी। तो ऐसी आदत हमें अपने नोट्स में डालनी चाहिए, हमें ये लिखना चाहिए ताकि हमें जरूरत पड़े तो हम उसे खोज सकें। फिर इस लॉकडाउन के दौरान हमें जो अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए ये भी देखना बहुत जरूरी है, डिमांड कहाँ है, हमारी प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स कहाँ हैं, कौन हमारे पार्टनर हो सकते हैं। कभी भी हम ये सोचते हैं, देखिए कंपटीटर, बहुत जरूरी है अपने मार्केट को जानना, कंपटीटर्स को जानना। क्या इस समय के बाद वो कंपटीटर जो था, क्या वो हमारा पार्टनर भी बन सकता है? क्या हम हाथ से हाथ वर्चुअली ही सही मिला के ऐसे लेवल पे बढ़ सकते हैं कि हम अपने देश को, राज्य को इतनी प्रगति के ऊपर ले जाएं कि आज अगर हम अलग अलग काम करके एक और एक कर रहे थे तो क्या हम उसको मिला के एक और एक 11 कर पाए? ऐसा कुछ। तो हमें उन चीजों के लिए अपने आप को ओपन करना होगा, हमें ओपन करना भी चाहिए। अभी जैसे शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ ऐसी चीजें थी कि जो हम सोच ही नहीं रहे थे, हमारे देश में बनती नहीं थी। और अभी 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने उद्बोधन सुना होगा, उसमें उन्होंने भी बताया कि हमारे देश में आज 2.5 लाख पीपीई किट हम बना पा रहे हैं। कुछ महीनों पहले तक हमारे देश में पीपीई किट बनता ही नहीं था, कुछ महीनों पहले तक हमारे देश में N95 मास्क बनता ही नहीं था। आज हम 20 से 30 हजार, कुछ हजारों में वो बना पा रहे हैं। तो देखिए अवसर भी पैदा हुए, आगे भी बढ़े। और मुझे जानकारी है बहुत सारे हमारे ऐसे लघु व्यापार हैं, उद्योगपति हैं जिन्होंने इस अवसर को पहचाना, इसमें बढ़े। लेकिन उसका उपयोग भी हम अच्छे से करें, अपने देश की संपदा को बढ़ाने के लिए करें, ऐसा मेरा सोचना है। अब वे फॉरवर्ड हम इमीडिएटली और क्या कर सकते हैं? हम अपने स्कूलों में, पहले तो मेरा एक अक्सर, मैं इस चीज में भी हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लोकल के लिए वोकल बनना है, मैं एक दूसरे तौर के लिए भी, मैं बौद्धिक क्षमता के लिए थोड़ा वोकल रहता हूँ। उसमें मेरा ये मानना होता है कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जो अलग अलग हम विभाग हैं, क्यों नहीं एक ऐसा विभाग हो स्टपनी की जो सभी के आयाम को एक सूर में पिरो दे, एक सूत्र में पिरो के आगे से आगे बढ़े, जिससे हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कोलेटिव एफर्ट्स बने। हमें ये नहीं पता हो कि एक विभाग कुछ कर रहा है, दूसरा विभाग कुछ, और वो आपस में उनकी जरूरतों को हम पूरा कर सकते थे। एक ही सोल्यूशन होता है, तो हम उनको जोड़ें और उस एक सोल्यूशन से बाकी जगहों के लिए भी, बाकी राज्यों के लिए भी मदद कर पाए। कैसे कर सकते हैं कुछ एक और आगे बढ़ाने के लिए? आपके यहाँ यूनिवर्सिटी कल्चर बहुत अच्छा बन गया है, आईपीआर सबको पता है, लोग बहुत सारे पैटेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अब हमें अगले लेवल पे जाके स्कूल एजुकेशन में, हमारे आज आप देखेंगे बच्चे हैं 4th क्लास के, 5वीं क्लास के, इतना फ्रेश माइंडसेट, इतना ताजा थॉट प्रोसेस होता है, सोच इतनी बढ़िया होती है, लेकिन क्या हम उसको चैनलाइज कर पाते हैं? प्रेशर नहीं, जोर नहीं, उनकी सोच एक ऐसी बननी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी नाम दिया, उसी सोच को हम स्कूल से बढ़ाना शुरू करें। सर्विसेज इज अ वन थिंग, आत्मनिर्भरता बचपन से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को बढ़ावा देने की दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। दूसरा,
हमारे पास आईपीआर के जितने इश्यूज हैं, हमारे देश में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही स्पष्ट रूप से स्मूथ तरीके से हम ये कर रहे हैं। उन चैलेंजेस को हमें रिजॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी। जितने हमारे आईपी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, हमें वो काफी कुछ इंडिजिनस यानी कि भारतीयता, अपने देश के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए हमारा इनोवेशन इकोसिस्टम बहुत अच्छा बनना चाहिए। हमारी जो लोकल इन्वेंशंस आती हैं, हमारे देश के अपने लिए जो लोग इन्वेंशन करते हैं, हमें उनके बारे में भी कुछ सोचते हुए अपने कानून में प्रावधान रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वैश्वीकरण को सोचते हुए और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को, रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ा पाए। तो ये होगा तभी जब हम इंडिजिनस और उस तरीके की आईपीआर पॉलिसीज अपनी बना पाएंगे। और मेरे ख्याल से मैंने बहुत समय के अनुसार पहुंच गया हूं। अगर किसी को कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी चाहिए हो, मेरा ईमेल आईडी और सब डिटेल हैं, गूगल कर लीजिए और मुझसे बेझिझक ईमेल कर सकते हैं। आई ट्राई टू बी एज रीचेबल पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और मैं यहाँ अपना उद्बोधन समाप्त करना चाहूंगा। और अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी हार्दिक धन्यवाद, और जीटीयू को एक बार बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Mohit ji. Thank you very much for giving a wonderful talk. I like this your talk in Hindi. Right. So I'm happy to listen in our national language Hindi, and participation also enlightening and enriched with the IPR knowledge. Very briefly, you have explained about the types of IPR, its history, and especially the Gujarat credit on geographical indication sources, right? And you have very good narrated about the how this IPR can be fruitful or implemented into the micro and small businesses, and by strengthening such IPR enabled to these small and micro businesses can be results into the Atmanirbhar Bharat. Very good changes you have narrated about the pre and post COVID. The things which is I like most is about the daily write-up of thoughts, right? So I'm also give same suggestions to our participations and the students and the innovators. Kindly note down your daily thoughts and put it into the action, same as suggested by the Dr. Mohit. So I'm once again thank you, Dr. Mohit, to giving a wonderful sessions and the valuable times sparing with Gujarat Technological University. Thank you very much. Now I'm also just our respected education minister said about Dr. Vikram Sarabhai video documentary competitions, which is held organized by Gujarat Technological University. So I'm going to declare a result of that documentary competitions. So among there is a 14 participations, more than 14 participants are selected. So among this 14th rank are given. The rank number 1 is student Ayush Joshi from Navsari. Second, student Giriraj C. Parmar from Rajkot. Third, student Satish Parmar from Rajkot. Fourth, children. It's a 9-year-old children Shreya Rathod from Surat. Fifth, student Nirav Mahitra from Ahmedabad. Sixth, it's a children 13-year-old Boda Hetwi from Devbhumi Dwarka. Seventh, student Ekjot Singh Sandhu from Ahmedabad. Eighth, student Sunni Wavadia from Ahmedabad. Ninth, it's a faculty Jayashree Rangolia from Junagadh. 10th, it's a children Param Joshi, 9-year-old from Porbandar. 11th rank, it's a faculty Dr. Nirav Maniar from Rajkot. 12th, it's a student
Pansurya Heni from Surat. 13th is a children Sujal Joshi from Surat, and 14th student Pathsala Pujan from Amreli. So once again, I congratulate to all these rankers, and the same list is also available on GTU websites. So now I'm request to showcase one video regarding this documentary, and it is the Param Joshi documentary. Please. Myself, Param Joshi. Today I tell you something about Dr. Vikram Sarabhai. If there was any scientist who could be credited with launching India into space age, it is Vikram Sarabhai, who made valuable contribution in this regard. Vikram Sarabhai was born on 12th August 1919 in Ahmedabad, Gujarat. His father's name was Ambalal Sarabhai. Vikram Sarabhai's services to the country and science will always be remembered. He took Indian science to greater heights and was a top scientist. Sarabhai returned to India in 1939 from England after completing his education. He had mostly done research on changes in cosmic rays and atomic energy, and was awarded PhD by the University of Cambridge for his research. He established a laboratory at Ahmedabad for research in physics. He also became the chairman of Atomic Energy Commission and was mainly instrumental in the establishment and development of Atomic Energy Center at Thumba in 1971. He was always busy in research on space and contributed a lot in the development of medical science and aviation technology. It was because of his persistent efforts that India could launch its first space satellite, Aryabhat. Vikram Sarabhai died on 30th December 1971 in Kerala. So I am proud to be said that I live in India where Vikram Sarabhai was born. Jai Hind. Thank you, Param, for submitting your documentary and participation in the competition. I'm just updating to now. Up to now, there is more than 5,000 views are seen on our page, as well as more than 7,000 are comment, and more than 280 shares. Sharing of this page is done up to now in this online webinar. So once again, I congratulate to all the participation and GTU stakeholders on the occasion of 13th Foundation Day, and thank you for participating and showing the presence on digital platform. Thank you. Now I'm signing off the webinar. Thank you very much.